very good afternoon to everyone. I, Dr. Anupriya Kumar, Associate Professor in Department of Anatomy, welcome you all. Before we proceed further, I would like to introduce to you alma mater, T.S. Mishra Medical College and Hospital. The institute was established with a vision to provide best comprehensive medical care to all, especially the lower socioeconomic group, so as to shape young medical professionals in various fields for the society. It is affiliated to the Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, which was established with the aim of providing highest level of self-reliance to the specially able section of our society. Now coming to the white coat ceremony for which we have gathered here, the tradition of the white coat ceremony was started by Dr. Arnold P. Gold in 1993 at the University of Columbia, so that students declare their commitment to profession and its virtues. I would request students to stand up for the Hippocratic Oath. The Hippocratic Oath, in the name of suffering humanity, with humility, compassion and dedication, to the welfare of the sick, according to the best of my ability and judgment, I will keep this oath. I will be honest with my patients in all medical matters. When this honesty reveals bad news, I will deliver it with sympathy, understanding and tact. I will attempt to provide whatever information my patients need, so that I can care for them more effectively. I will provide my patients with acceptable alternatives in diagnosis, medical and surgical treatment, explaining the risks and benefits of each alternative as best as I know them. I will encourage my patients to seek medical opinions other than my own before accepting that offered by me. I will allow my patients to make the ultimate decision about their own care. When they are incapable of making decisions, I will accept the decision of their family members or loved ones, encouraging these surrogates to decide as they believe the patient would have decided. I will provide care to all patients, regardless of sex, race, creed, sexual preference, lifestyle or economic status. In particular, I will volunteer some of my time to providing free care to the poor, the homeless, the disadvantaged, the dispossessed and the helpless. I will not sit in moral judgment on any patient, but retrieve the illness to the best of my ability, regardless of the circumstances. I will be empathetic to patients suffering from illness caused by alcohol, drugs, or other forms of self-abuse. I will turn away no patient, even those with dreaded, contagious diseases like AIDS. Knowing my own inadequacies, and those of medicine generally, I will strive to cure when possible.
relief and comfort always. I shall perform medical tests only if there is a reasonable chance that the results will improve the outcome for my patients. I will not perform any tests or procedures or surgeries solely to make money. I will freely refer my patients to other physicians if I am convinced that the treatment is better than mine. I will freely furnish copies of medical records to the patient or when authorized by the patient to the family upon request. I will undo patients and their families only what I would want done unto me or my family. I will not experiment upon patients unless they give truly informed consent. I will strive to instruct patients fully so that truly informed consent is possible. I will remain a student all my professional life, attempting to learn not only from formal medical sources, but from my patients as well. I will apply the lessons they provide to the care of other patients. I will treat my professional colleagues with respect and honor, but I will not hesitate to testify openly about physicians and medical institutions that are guilty of malpractice, malfeasance, stupidity, or fraud. I will defend with equal fervor colleagues who are unjustly accused of malpractice, malfeasance, stupidity, or fraud. Please sit down. Our Vice Chairman, Shri Kapil Mishra Ji, is keenly involved in the activities of the Institute. He is an eminent lawyer by profession, practicing both in the Supreme Court and the High Court. It would also be unfair on my part if I do not mention about his better half, Mrs. Praniti Mishra, Director, Nursing and Paramedical Institute. She has been a constant source of support for our Vice Chairman. The students relate very well with the dynamic personality of a Vice Chairman, so I would request him to please address the students. Good afternoon, everyone. अभी से 1 साल पहले शायद हम सबको किसी को भी आइडिया नहीं था कि दुनिया में हम लोग की फैमिली में और पूरी इंडिया वर्ल्ड हर चीज़ को इन्वॉल्व होते हुए कि सब लोग कौन सी कैसी किस सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। पूरी दुनिया में कैसी ये कोविड नाम की एक चीज़ आने वाली है जो सबकी लाइफ को इफेक्ट करने वाली है। एंड इस चीज़ में सबसे ऊपर उभर के कौन निकला, वो मेडिकल फील्ड और मेडिकल हेल्पलाइन वर्कर्स निकले। एंड जब आप लोग शायद क्लास 12 में या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब पूरी दुनिया इस एक फेज से गुजर रही थी। एंड उसी के दौरान आप लोगों ने ये डिसीजन लिया इस फील्ड को ऑप्ट करने का, डॉक्टर बनने का। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा प्राउड फील आपके पेरेंट्स और आपको खुद अपने लिए इससे ज़्यादा प्राउड फीलिंग का और कोई चीज़ है भी नहीं। तो मैं चाहूँगा एक बार खुद के लिए आप लोग अपने लिए कस के ताली बजाएं। हम लोग यहाँ पे TSM को एक एज अ फैमिली मान के चलते हैं।
यहाँ पे चाहे हमारे जितने स्टूडेंट्स हों, आप लोग हमारा 5th बैच हैं, या जिस फील्ड के वर्कर्स हों, जिस डिपार्टमेंट से लोग एसोसिएटेड हों, हम लोग उसको एक एज अ TSM फैमिली मान के चलते हैं। हम लोग सबको इक्वल दर्जे, इक्वल रेपुटेशन, इक्वल स्टेटस से हम सबको देखते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग आप सारे स्टूडेंट्स हमारी फैमिली का मेंबर हुए। तो मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहूँगा टू TSM फैमिली। एंड मैं ये भी चाहूँगा कि आप सब हर किसी को साथ मिल बांट के एक दूसरे को इक्वल लेवल, इक्वल स्टेटस में रख के आगे बढ़ें। अभी अगले 5 साढ़े 5 साल आप सबके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट साल हैं। अभी तक आप लोग जो स्कूल में पढ़ा सीखा, उससे ज़्यादा अब रियलिटी आपके सामने अब शुरू होने जा रही है। अब आप रियलिटी फेस करेंगे पढ़ते वक्त, स्पेशली जब आप लोग यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, तब दुनिया की रियलिटी ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। एंड जो वर्ल्ड में जो भी सब होता है, उसमें अब असली हीरोज कौन बन के निकले वो आप सब क्या पूरी दुनिया जानती है कि मेडिकल फील्ड के हेल्थ केयर वर्कर्स, स्पेशली डॉक्टर्स हैं। एंड आप डॉक्टर्स अगर एक इंस्टीट्यूशन की हार्ट माने जाते हैं, तो बैकबोन नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ है। दोनों मिल के साथ में चलते हैं, जो कि ये पूरी कोविड के टाइम पूरी दुनिया ने देखा, सबने मिल के एक साथ किस तरह इस चीज़ से फाइट करी है और कैसे इससे निकल के आए। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग मिलकर सबको एक साथ देखते हुए, एक लेवल में रखते हुए आगे बढ़ें। एंड अभी बहुत लंबी लाइफ आप लोग के आगे बढ़ी है। तो मैं चाहूँगा आपके पेरेंट्स ने इतनी अपनी पूरी मेहनत कमाई हर चीज़ को दांव में रखते हुए आपको इस इंस्टीट्यूशन में और मेडिकल फील्ड में डाला है, तो मैं चाहूँगा उसको आप लोग जस्टिस दें एंड पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी कोर्स की पढ़ाई कंप्लीट करें एंड नोटोरियस एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो। एंड जहाँ भी जिस चीज़ में आप लोग को प्रॉब्लम आए, तो हमेशा प्रिंसिपल सर हमेशा यहाँ पे इनके ऑफिस के डोर्स हमेशा सब स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। एंड मैं एज अ वाइस चेयरमैन, मेरी वाइफ को वाइस चेयरमैन है, जो हम लोग हमेशा पर्सनल लेवल में स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती कुछ आता है, तो उस पर हम लोग पर्सनली खुद इन्वॉल्व होकर कैसे आपकी हेल्प कर पाएँ, तो हमेशा इस चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एंड मैं बस यही चाहूँगा कि डू योरसेल्फ प्राउड, मेक योर फैमिली प्राउड। एंड आपको दम नई जर्नी अब आपके लिए शुरू हुई है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड वेलकम टू TSM फैमिली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you, sir, for such encouraging words. All of us have been through testing times. And our chairperson, Srimati Kalpana Mishra ji, is strongly committed to the vision of her patron, Shri Satish Chandra Mishra ji, who is also an honorable member of the Parliament. I would take this opportunity to mention about Mission Shakti, the program for women empowerment. It was conducted throughout the previous week, this week. The girls were made aware of various helpline numbers and apps for their security. They were also taught self-defense. An attempt was made to sensitize the students to various issues faced by the females at all levels. The programs included debates, poster making, slogan writing, rangoli, songs and nukkad natak. The students had put up a great show in such a short span of time which they got for preparation. All this was conducted by Dr. Kanchan, Dr. Sadhna, Dr. Priyanka, Dr. Anupriya and Chanchana ji under the guidance of Dr. Shashi Pandey. Ma'am, I would request you to please bless our students and encourage them with your words. आपको बहुत खुशी है कि आप लोगों का नया बैच शुरू हो रहा है। आप लोग का फर्स्ट ईयर है, बहुत ज़्यादा आपका स्वागत है इस TSM फैमिली में। जैसा कि वाइस चेयरमैन ने आपसे कहा है कि हम लोग एक फैमिली जैसे रहते हैं और सबकी प्रॉब्लम को हम लोग खुद डील करते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स ने इतनी मुश्किल से आपको यहाँ भेजा है, तो आप उनका TSM के साथ साथ आप उनका भी नाम रोशन करें। किसी और एक्टिविटीज़ में पढ़ने के बजाय आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और आज से आपका ये मेडिकल स्टडी का डे शुरू हो गया है, तो इसलिए आप लोग अपने ये आगे आने वाले 4 साल 4.5 साल
प्लस आगे भी हम लोग का स्कोप है कि आप यहाँ से रह के MD भी कर सकते हैं। तो वो आगे हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। आप लोग उस पर ध्यान दें, पढ़ाई पे, और यहाँ पे अनुशासन के साथ रह के यहाँ पढ़ाई करें और PSM फैमिली को सपोर्ट करें। हम लोग आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, एक्सेप्ट कि आप लोग अनुशासन में रहें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट में 5 साल 5th बैच अब निकलने वाला है, सॉरी 1st बैच 5th ईयर के बाद निकलने वाला है। हम लोग के इंस्टीट्यूट में कभी रैगिंग नहीं हुई है, तो इसलिए हम एश्योर कर रहे हैं कि आप लोगों की अगर कोई रैगिंग करने की कोशिश करता है तो आप प्रिंसिपल सर को बोलिए, इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को किसी चीज़ की वरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने स्टडी में ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। Our Dean, Dr. Professor Brigadier R.K. Srivastava sir has served in the Armed Medical Corps for more than 30 years. He is a disciplinarian yet very approachable. Sir, I would request you for the vote of thanks. Respected Chairperson Mrs. Mishra, Vice Chairman Mr. Kapil Mishra, Mrs. Praniti Mishra, my teachers and students. Although your classes have started exactly 1 month back, and during past week I have seen your involvement in Nari Shakti Saptah, and I have seen your potentials and talents. I am really feeling proud of you that you are full of energy and full of resources. And I hope that the same energy and resources you will utilize in acquiring knowledge in this college. This whiteboard ceremony, as our MCS told, that started in 1993, and recently it has been adopted by our National Medical Council. And this is a good ceremony. It gives you a proud privilege and feeling to be attached with this profession emotionally. Earlier in olden days it was only Hippocrates oath. This inculcates discipline, ethics and dedication towards the care of sick and needy. And doing doctor's duty is not without risk and hazards. It gives you lots of stress. It gives you stress to be perfect, to be caring for the sick and needy. My advice to the trainer, teachers, that you should concentrate how to train these young minds so they remain happy. They should not be stressed with this profession, which is a professional hazard. In due course of time, you'll see that lots of stress will come in. You get emotionally attached to the patient, you get emotionally attached to their sickness. Sometimes you feel that you have not done justice, but that is part of life. And you have to learn to live with it and try to find means and source of happiness in this monotony of medical profession. So whatever you learn, be happy first and enjoy the profession. All the best and welcome to the organization. Thank you.
और इतनी हिम्मत करके मैं यहाँ की बोल रही हूँ, इतना ही मेरे लिए काफी है। तो आइए मेहरबान कदरदान भाईजान, आज हमारा बैच आप सभी के सामने पेश करने जा रहा है नारी सशक्तिकरण पर एक नुक्कड़ नाटक। मैं जासूस हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं भी जासूस हूँ। अच्छा फिर ठीक है। तुम इधर क्या करने आए? मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। कौन से प्रश्न का उत्तर? यही कि क्या हमारे समाज में महिलाएं स्वावलंबी हैं? क्या हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारा समाज महिलाओं का सम्मान करता है? मतलब मैं समझा नहीं कुछ। चलो तुम्हें समझाता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है? होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, प्रेम से होना चाहिए। यहाँ पे बदतमीजी क्यों हो रही है? इसी बदतमीजी के कारण आज भी होली के त्योहार के दिन महिलाएं अपने घर से निकलने में भी संकोच करती हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ बेटा। वो आप मार्केट जाओगे क्या? मार्केट क्यों, क्या हुआ? हाँ वो मुझे सैनिटरी पैड मंगवाना था। क्या ठीक है कह रही है तू? ये मेरा काम है? तेरी माँ ने तुझे ये सिखाया है? रुक इससे बात करता हूँ। हेलो श्वेता, तूने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए हैं? ये मुझसे पैड्स मंगाएगी? आज दोपहर तेरी खबर लूंगा। मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महिला इससे गुजरती है। In a society where menstruation is shamed and spoken about in whispers, it's high time that we change our attitudes towards it. हाँ जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। गलत? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे दोस्त। चलो फिर दिखाओ। पापा मुझे PS5 चाहिए था। नहीं अरे दिला देंगे PS5, और बता तुम्हें क्या चाहिए यार, तो मिल जाएगा। नहीं अरे दो ही तो भाई लड़के हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा तुम्हें यार। थैंक यू पापा, मुझे रात में 3 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाना है। मुझे गाड़ी की चाबी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अरे दे दो, लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, चले जाओ पर टाइम से आ जाना। आराम से बात कर। पापा मम्मी, मुझे एमबीबीएस करने अब्रॉड जाना है। बेटा तुम क्या करोगे एमबीबीएस करके? पढ़ाई तो तुम्हें करनी नहीं वैसे ही हमारी। प्लीज पापा। क्योंकि तुम्हारी शादी करा देंगे फिर उसके बाद। बेटा समझने की कोशिश करो, पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं ना। पर आपने भैया तुम्हारे दो भाई भी हैं, तुम्हारे दो भाई भी होंगे देखना में। अगर तुम शादी कर लो या पढ़ाई कर लो, एक चीज करा सकते हैं बेटा, हमारे पास तो पैसा देंगे। बेटा पापा की बात समझो, लड़कियां पराया धन होती हैं और एक दिन तो चले जाना है तुम्हें। बेटा घर का वंश आगे बढ़ाए और बेटी पराया धन, इसी सोच के कारण महिला समाज में पीड़ित और परेशान रहती है हमेशा। इसी वजह से आज हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान चलाने पड़ रहे हैं। अगर आज का समाज महिलाओं को सिर्फ उनका हक भी दे तो ये भी उनके लिए बहुत सम्मानजनक बात है। अब एनी का क्या करना है? क्या करना है? अब क्या ही कर सकते हैं, जिसने कर दिया तो करना था। इससे तब कोई शादी भी नहीं करेगा। शादी तो भूल ही जाओ, इसने तो नाक कटा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, इसको छोटे कपड़े मत पहनने दो, रात को बाहर मत जाने दो, पर तुमने मेरी कहाँ सुनी। अब भुगतो। इस बात को दबाने का कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं ही इसके बारे में कुछ सोचूंगा। थानेदार साहब नमस्कार, बताइए। अरे हमने सुना यहाँ कोई डेथ हुआ है। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं साहब, एनी बैठो। सब जगह बैठो। समझाओ इसे। आप लड़की को बाहर बुलाइए। अरे आप मुझसे बात कीजिए, बताइए। साहब, एनी अरे हम लड़की से ही बात कर लेंगे, आप
हम इस बात को कुछ ले देकर यहीं नहीं दबा सकते। कितना देंगे? थानेदार साहब, माल आपके थाने पर पहुंच जाएगा। नमस्कार। ठीक है। अरे देखो ना, पुलिस आ गई। अरे चलो चलो देखते हैं क्या हुआ। भाभी जी, कुछ नहीं हुआ है, आप अपना काम करिए। अरे रहने दीजिए भाभी जी, पूरे मोहल्ले को पता है क्या हो गया। छोटे छोटे कपड़े पहने तो यही तो होना था। कोई काम धंधा नहीं है क्या आपके पास? जाइए अपने घर जाइए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रेप एक ऐसा घिनौना हरकत है जिसकी खबर सुन के सबका खून खोलता है हमेशा। यो कामम दुष्यते कन्याम सद्यो वदम रहति। मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 364वां श्लोक है। इट मीन्स a man who rapes an unwilling maiden shall be immediately executed. रेप एक ऐसा घिनौना अपराध जिसे कितने ही समय से हमारे समाज में लताड़ा है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में हर घंटे अप्रॉक्सीमेटली 90 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। क्या यही वो आदर्श समाज है जिसमें आप अपनी महिलाओं को, अपनी माता बहनों को रखना चाहते हैं? तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर हम आप सभी को समाज में कुछ महान महिलाओं के बारे में, जिन्होंने समाज में एक अहम योगदान दिया है, उनके बारे में परिचित कराते हैं। जैसे कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं झांसी की सेवा करूंगी। मैं अपनी झांसी गोरों को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पूरा करेंगे। जब एक बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। झांसी आप भी चाहते हैं और हम भी, फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे सेवा करनी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं इंदिरा गांधी यह प्रण लेती हूँ, इस देश की सेवा करते हुए यदि मैं मर भी जाऊँ तो मुझे उस पर गर्व होगा। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के परिवर्तन में पूरा योगदान देगा। धन्यवाद। I, Kamala Harris, first woman Vice President of America. I might be the first woman president, but I am sure that I'll not be the last one. Thank you. इतनी दूर आ गए हम, कहने को तो रानी लक्ष्मीबाई से कमला हैरिस तक, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं को कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी, कितने ही बलिदान त्याग करने पड़े। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? फैंटास्टिक शो, कीप इट अप। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वो सीता बनकर बेटों को लवकुश बना सकती है। कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को, कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को। जिन हाथों में आज चूड़ियां हैं वो कल को तलवार भी उठा सकती है। जीवन का कला है, जीवन का कला है अपने हाथों से साकार करना है। जीवन का कला है अपने हाथों से साकार करना है। नारी ने संस्कृत का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। जब नारी में शक्ति सारी तो क्यों कहे नारी को बेचारी। धन्यवाद। इस देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए पैसे दिए जाते हैं। थैंक यू। बेटी को अधिकार दो, बेटी को अधिकार दो, उन्हें बेटों जैसा प्यार दो। थैंक यू। गलती किसी और की टोकते किसी और को, गलती किसी और की टोकते किसी और को। कहना है बहुत कुछ पर दबा देते हैं आवाज को। कभी इधर मत जाओ तो कभी ये मत पहनो, कभी इधर मत जाओ तो कभी ये मत पहनो। मानते हैं समाज बोझ उनको। थैंक यू।
नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। नहीं सहना है किसी का अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही मुख्य विचार। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई डगर है, नया है सफर, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे। उसके आंसुओं को ना देखा, उसके दर्द को ना समझा, उसके आंसुओं को ना देखा, उसके दर्द को ना समझा, मैं इस जमाने के डर से अपनी ही बेटी के साथ नाइंसाफ कर रही हूँ। Last, I would like to conclude that please respect women and please make them comfortable. नारी को ये एहसास मत दिलाओ कि वो एक नारी है। तुम पुरुष हो, बस अपनी मर्यादा पहचान लो, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। There has been immense criticism in the name of women empowerment. But a profoundly acknowledgeable fact is that we have come a long way. And let's celebrate it. Because what is women empowerment? Women empowerment is a festivity of liberation and strength. And it must go on forever. तो अब हमारे समक्ष आ रहे हैं वह कलाकार जो नारी सशक्तिकरण से जुड़ी हमारी संवेदनाओं को धुनों पर सजा सके। I would like to call upon stage Vanshika, Janvi, Sneha, Sitakshi,
वो भी आप सब लोग एक दूसरे से पहले से ही जानते हैं, सब एक दूसरे के साथ 1 महीना हुआ है अभी मिले हुए, इन्वॉल्व हुए, तो ऐसा लग रहा था देख के कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं 5th ईयर में हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने ये प्रेजेंट करा, एंड दैट टू विद सच अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मैसेज, सो इट वाज वेरी नाइस एंड वेरी नाइसली डन। बल्कि इनफैक्ट इस बार आपकी व्हाइट कोट सेरेमनी के लिए हम सलमान खान को इनवाइट कर रहे थे, बट वो हमारे बजट से थोड़ा बाहर था, तो बल्कि अच्छा नहीं करा, बस हमें भी पता था इतने टैलेंटेड लोग हमारे स्टूडेंट्स आप लोग हमारे बीच हैं और जो फर्स्ट ईयर के हैं, एंड आई होप जो आप लोग हम लोग जो पार्ट नहीं ले पाए, खुद आप सब भी और इतने टैलेंटेड होंगे, एंड अभी पूरा टाइम बचा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम वील मेक श्योर कि कुछ ना कुछ होती रहे, सो दैट आप सब लोग कहीं ना कहीं इसी टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, एंड इसी से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनती है, बढ़ती है, एंड इट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी नाइस टू सी यू गाइस डू सच एक्ट दैट टू विद कंबाइंड एफर्ट। सो एक बार फिर से मैं खुद के लिए आप लोग के लिए हमेशा काम करता हूं, गुड जॉब एंड गुड वर्क, एंड इसी तरह आपस में कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए, एंड आई होप जो ये मैसेज आप लोगों ने इस नुक्कड़ नाटक के थ्रू कन्वे करा, सो आप सब लोग इस पे मुकम्मल करें एंड इसको स्ट्रांगली बिलीव करें, एंड जिस हो सकता है ये पॉजिटिव मैसेज अपने थ्रू पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू। Thank you everyone for being a part of this ceremony, and I wish all the students best of luck as they embark upon a new journey in their life.